Very good morning, students. I hope you all are doing well. So, we have completed our third lesson, and now we are going to start with the fourth lesson, which is Introduction to PowerPoint 2016. Now, firstly, we need to know what is PowerPoint. So, PowerPoint is a spreadsheet or a part of Microsoft program which helps us to create various slide presentations. In this, we make different presentations with the help of various slides. Now, it also allows us to use various types of multimedia like audio, video, text, etc. So now in this, we will learn about various topics, which is starting PowerPoint, components of PowerPoint window, creating a new presentation, entering data on a slide, slide layout, using built-in templates, inserting word art, inserting a picture, inserting smart art, moving an object, rotating object, applying shadow effects, saving a presentation, and close or exit PowerPoint. Now, first we come up with an activity which says match the slide layout design with their names. Now, यहाँ पे various slide layout designs are given to us and हमको उनको accurate name के साथ उनको match करना है. So now in the first one we can see there is a title and also the area for our content or our work. So now we can find it here like title and content. So we will match it. The next one we can see it is a section header. So we will match it. Then a title slide. Here we can see there is a title and we have slided it. So title slide, and in the fourth one we can see there is a comparison between the two things. So we will mark it to the comparison. Now PowerPoint is a part of Microsoft Office suite. PowerPoint क्या है? PowerPoint एक Microsoft Office suite का ही part है and has become synonymous with presentations. और ये क्या करता है? ये presentations के लिए work करता है. It allows you to create dynamic slide presentations. So how does it help us? It helps us in various ways for creating slide presentations. It could be combination of multiple media, and in the presentation it could be also a combination of various types of multimedias, which is audio, video, text, etc. Now one page of our presentation is termed as slide. In the presentation, as I told you, we make different dynamic slide presentation. तो प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड क्या होती है? हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसका जो एक पेज है, उस एक पेज को हम क्या बोलते हैं? उस एक पेज को हम एज अ स्लाइड कंसीडर करते हैं. एंड अ ग्रुप ऑफ स्लाइड्स ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक इज टर्म्ड एज प्रेजेंटेशन. और जब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ स्लाइड हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी भी पर्टिकुलर चीज पे, जब हम कुछ वेरियस स्लाइड्स को इकट्ठा करते हैं, उनको हम टुगेदर मेक करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बनाती है? प्रेजेंटेशन को वो फॉर्म कर देती है. In this chapter, we will discuss working with PowerPoint. Now, first is starting PowerPoint. How we can start PowerPoint? To start PowerPoint program, you have to follow given steps. First, click on Start button on the Open Start menu. तो हमें क्या करना है? अपने Start button पे click करना है. Scroll down and click on PowerPoint 2016. Then we can easily see here PowerPoint. We will click on it. The PowerPoint startup screen opens up. और जब हम अपने PowerPoint एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी PowerPoint विंडो ओपन होके मिल जाएगी. नाउ क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन. हमारे पास इस तरीके का कुछ हमारे डेस्कटॉप पे आएगा. जब हम पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है. यू ईदर कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय क्लिकिंग अ थीम. यू कैन ऑल्सो ओपन अ रिसेंटली ओपन प्रेजेंटेशन. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें अगर कोई नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाके एक नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं. वरना हम यहाँ पे ऑलरेडी जो हम रिसेंटली ओपन कर चुके हैं उस प्रेजेंटेशन को भी हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं. तो नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार. इट हैज आइकन्स और फीचर्स विच आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली. तो क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास क्या होता है? ऐसे आइकन्स होते हैं, ऐसे फीचर्स के जो हमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करने रहते हैं. द सेकेंड इज टाइटल बार. इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंटली डिस्प्लेड प्रेजेंटेशन. टाइटल बार क्या करता है? जो करंटली हमारी प्रेजेंटेशन हमारे डेस्कटॉप पे डिस्प्ले हो रही है उसके टाइटल को ये हमें शो करता है. देन फाइल टैब.
It displays a backstage view that has commands print, save, open, etc. तो ये क्या है, ये एक बैकस्टेज व्यू हमें प्रोवाइड कराता है फाइल टैब, जिसके अंदर कैसी टर्म्स होती हैं, कैसी कमांड्स होती हैं, जैसे प्रिंट, सेव, ओपन एंड etc. नाउ स्लाइड्स आउटपुट पेन, इट शोज थंबनेल्स ऑफ ईच स्लाइड। स्लाइड आउटपुट पेन क्या करता है, हमारी हर स्लाइड का एक थंबनेल वो हमें शो करता है। Then slide, one page of presentation. We have already studied that. What is a slide? Slide is one page of a presentation. Placeholder, a dotted box which may contain text, picture, video, etc. Placeholder क्या होता है? Placeholder एक dotted box होता है इस तरीके का, ऐसे डॉटेड बॉक्स, जिसके अंदर क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं और वीडियोस भी हो सकती हैं। देन रिबन, इट कंटेन्स मल्टीपल टैब्स ईच विद सेवरल ग्रुप ऑफ कमांड्स। तो रिबन क्या करता है, ये मल्टीपल टैब्स को कंटेन करता है और जो हर एक सेवरल ग्रुप में होती हैं एज पर द कमांड्स। स्टेटस बार, इट शोज नंबर ऑफ करंट स्लाइड, ये क्या करता है, स्टेटस बार हमें क्या शो करता है, हमारी करंट स्लाइड का नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड डिजाइन थीम। तो ये तीनों चीजें हमें कौन शो करता है, हमारा स्टेटस बार। नाउ हियर वी कैन इजीली सी दैट दिस इज आवर क्विक एक्सेस टूल बार, जो कैसे आइकन्स को रखता है, जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। देन फाइल टैब, दिस इज अ रिबन, दिस इज अ टाइटल बार एज इट शोज प्रेजेंटेशन 1। तो प्रेजेंटेशन 1 क्या हो गई, प्रेजेंटेशन 1 इज द नेम ऑफ आवर करंटली डिस्प्लेड प्रेजेंटेशन। Then this is a slide and this dotted box is a placeholder, and this which shows the status of a slide is a status bar, and this is slides and outline pane. Now creating a new presentation, अब हमें अपने PowerPoint में एक नई presentation बनानी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, when you open PowerPoint it shows a blank slide where you can directly start working। जब भी हम PowerPoint खोलते हैं तो हमें उसको खोल के क्या मिलता है, एक ऐसा ऑप्शन मिलता है, एक ब्लैंक स्लाइड का हमें ऑप्शन मिल जाता है हियर, जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपना एक नया प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके क्लिक ऑन द फाइल टैब, द बैकस्टेज व्यू अपीयर्स। जब हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो हमें एक बैकस्टेज व्यू मिलेगा। क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, यहाँ पे हम किस में गए, न्यू ऑप्शन में गए। यू विल सी मेनी डिफरेंट टेम्पलेट्स एंड थीम्स, यहाँ पे हमें वेरियस डिफरेंट टेम्पलेट्स और थीम्स मिल जाती हैं। और यहाँ से हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करना है। अ न्यू प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड विद अ सिंगल स्लाइड हैविंग 2 प्लेस होल्डर्स। यहाँ पे क्या होगा, एक नई प्रेजेंटेशन खुलेगी विद सिंगल स्लाइड एंड 2 प्लेस होल्डर्स। अब एंटरिंग डेटा ऑन अ स्लाइड, अब हमने स्लाइड तो खोल ली है, उस पर हमें डेटा ऐड करना है, डेटा एंटर करना है, तो क्या करेंगे, whenever you open a new presentation in PowerPoint, the presentation program assumes the first slide to be a title slide by default। जब भी हम कोई नई प्रेजेंटेशन बनाते हैं PowerPoint के अंदर, तो क्या होता है कि जो भी हमारी फर्स्ट स्लाइड होती है उसे हम कैसे कंसीडर करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो बाय डिफॉल्ट एज अ टाइटल स्लाइड ही कंसीडर होती है। अ टाइटल स्लाइड शोज द टेक्स्ट प्लेस होल्डर, और जो टाइटल स्लाइड होती है वो हमें क्या देती है, एक टेक्स्ट प्लेस होल्डर वो हमें प्रोवाइड कराती है। Where the text is to be typed, ऐसे जो हमारे लिए क्या करेगा, टेक्स्ट को टाइप करेगा। नाउ एंटरिंग टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड के कुछ स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर पे हम क्लिक करेंगे। टाइप योर टेक्स्ट इन इट, और उसके अंदर हमें क्या करना है, अपना टेक्स्ट को टाइप करना है। देन द टाइप्ड टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन इन द बॉक्स एज वेल एज इन द साइड थंबनेल पेन। फिर क्या होगा कि हमारा जो भी हमने टेक्स्ट लिया है वो हमारी स्लाइड पे तो आएगा ही, और साइड बाय साइड में हमारी जो थंबनेल है हमारी स्लाइड की, वहां पे भी वो उसको शो करेगा। देन स्लाइड लेआउट, मल्टीपल ऑप्शंस एंड लेआउट्स आर अवेलेबल। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और लेआउट्स होते हैं हमारी प्रेजेंटेशन के लिए, जो किस पे बेस्ड होते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट होने वाली है। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द होम सेक्शन, ये ऑप्शन कहाँ पे होता है, होम सेक्शन में हमें मिल जाता है। एंड वन कैन सेलेक्ट द मल्टीपल लेआउट ऑप्शंस, और हम यहाँ से अपने लिए किसी भी तरीके का एक मल्टीपल लेआउट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। चेंजिंग स्लाइड लेआउट, टू चेंज द स्लाइड लेआउट यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। अब अगर हमें बाय डिफॉल्ट कोई अपना लेआउट मिल जाता है या हमें उसको चेंज भी करना है, तो हम उसके लिए क्या स्टेप्स करेंगे।
क्लिक ऑन होम टैब, सबसे पहले हम होम टैब पे गए, देन सेलेक्ट द स्लाइड टू चेंज द लेआउट। होम टैब पे जाने के बाद में हम यहाँ से उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें लेआउट चेंज करना है। क्लिक ऑन लेआउट ड्रॉप डाउन एरो, फिर हम लेआउट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, प्रेजेंट इन द स्लाइड्स ग्रुप, चूज द डिजायर्ड लेआउट। और ये जो हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम अपना कोई भी एक डिजायर्ड लेआउट चूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट अप्लाइज द सिलेक्टेड लेआउट टू द स्लाइड, और पावर पॉइंट क्या करेगा, हमने जिस भी लेआउट को सिलेक्ट करा है उसे हमारी स्लाइड पे अप्लाई कर देगा। द टेक्स्ट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ टू द न्यू लेआउट इन द स्लाइड, और जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेता है अपने नए लेआउट के साथ में। यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट, अब हमारे पास बिल्ट इन टेम्पलेट्स जो हैं हम उनको कैसे यूज करेंगे, कैसे हम उसका फायदा ले सकते हैं। अ पावर पॉइंट टेम्पलेट इज अ सेट ऑफ रेडीमेड पावर पॉइंट स्लाइड्स। देखो, पावर पॉइंट टेम्पलेट क्या होता है, ये एक रेडीमेड पावर पॉइंट स्लाइड है जो क्या कंटेन करती है, लेआउट को, थीम्स को, ग्राफ्स को, चार्ट्स को और इवन कंटेंट को भी। तो पावर पॉइंट के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जो इन सारी चीजों को कंटेन करके रखे रहते हैं। Basically, they are ready-made. To use these templates, you have to follow given steps. Click on File tab. The Backstage view opens up. File tab पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे को एक Backstage view मिल जाएगा. Now select the new option. यहाँ से हमने new option को select किया. You will see a list of ready-made templates. और हमें क्या मिल जाएगी, list मिल जाएगी ready-made templates की. Now step 4, select a template of your choice and click on the create button. हमें वहां से कोई भी अपनी पसंद की एक टेम्पलेट को चूज करना है और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। अ न्यू प्रेजेंटेशन विल बी क्रिएटेड विद द सिलेक्टेड टेम्पलेट, और हमारी जो नई प्रेजेंटेशन है वो कैसे क्रिएट होगी, हमारे सिलेक्टेड टेम्पलेट के साथ उसी में क्रिएट होगी। नाउ इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, as you already studied that word art is a quick way to make text stand out with special effects। देखो, वर्ड आर्ट क्या है, वर्ड आर्ट ये है कि हम जो भी टेक्स्ट अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर रहे हैं उसको एनहेंस करना, उसके इफेक्ट्स ऐड करना, उसमें हमें एनहेंसमेंट करनी कि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो वर्ड आर्ट क्या है, वर्ड आर्ट स्टडी है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, टेक्स्ट स्टैंड आउट विद स्पेशल इफेक्ट्स, कि हमारा जो टेक्स्ट है वो स्पेशल इफेक्ट्स के साथ में स्टैंड आउट हो। दीज आर नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट फॉर्मेटिंग, ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग में अवेलेबल नहीं होते हैं। यू कैन इंसर्ट वर्ड आर्ट इन योर स्लाइड्स ऑल्सो। टू ऐड वर्ड आर्ट टू अ स्लाइड यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर वर्ड आर्ट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। क्लिक ऑन वर्ड आर्ट कमांड इन द टेक्स्ट ग्रुप अंडर द इंसर्ट टैब। देखो, हम इंसर्ट टैब में गए, इंसर्ट टैब में जाने के बाद में टेक्स्ट ग्रुप में हमें क्या मिलेगा, टेक्स्ट ग्रुप में हमें मिलेगा वर्ड आर्ट कमांड, और हमें उसको सिलेक्ट करना है। देन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड आर्ट स्टाइल्स। हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे हमारी वर्ड आर्ट स्टाइल के लिए। सेलेक्ट द स्टाइल ऑफ योर चॉइस, वहां से हम क्या करेंगे, अपनी किसी भी चॉइस, अपनी डिजायर्ड चॉइस को सिलेक्ट करेंगे। अ टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट, और हमें क्या मिलेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा अपने डॉक्यूमेंट पे। एंटर टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, आफ्टर एंटरिंग द टेक्स्ट क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। और फिर हमें क्या करना है, जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा फिर हमें उसके बाहर आके क्लिक कर देना है, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली हमारे डिजायर्ड वर्ड आर्ट में चेंज हो जाएगा। इंसर्टिंग अ पिक्चर, अब हमें अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ पिक्चर इन पावर पॉइंट बाई टू वेज। हम दो तरीके से पावर पॉइंट के अंदर अपने पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस डिवाइस एंड ऑनलाइन पिक्चर्स। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है कि ऑलरेडी जो हमारे डिवाइस के अंदर पिक्चर्स हैं हमें उसे इंसर्ट करना है, या फिर हम ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं। टू इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम अ फाइल यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। अब हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। अब जब हमें इंसर्टिंग ही करनी है तो उसके फीचर्स हमें कहाँ मिलेंगे, इंसर्ट टैब में मिलेंगे। हम इंसर्ट टैब में गए, नाउ क्लिक ऑन पिक्चर्स, यहाँ से हमने पिक्चर्स पे क्लिक किया। टू ऑप्शंस आर अवेलेबल, क्लिक ऑन दिस डिवाइस। हमारे को दो ऑप्शन मिले, दिस डिवाइस एंड ऑनलाइन पिक्चर्स। हमने दिस डिवाइस पे क्लिक कर दिया। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स इज शोन ऑन द स्क्रीन। जब हम दिस डिवाइस पे क्लिक कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके का एक इंसर्ट पिक्चर बॉक्स मिल जाएगा। चूज द पिक्चर फ्रॉम फाइल एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। यहाँ से हम अपनी फाइल को चूज करके जो भी पिक्चर हमें लेनी है उसको चूज करके हम इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे।
अब अगर हमें ऑनलाइन उसको करना है, अभी तक तो हमने अपने ऑलरेडी डिवाइस वाली पिक्चर को इंसर्ट किया है, लेकिन अगर हमें ऑनलाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट टैब में गए, हमने पिक्चर्स को क्लिक करा, अब यहाँ पे हम ऑनलाइन पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे। एंश्योर बिंग इज शोइंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ साउंड्स टू सर्च। इन द सर्च बॉक्स टाइप द इमेज यू आर लुकिंग फॉर एंड प्रेस एंटर की। फिर हमें क्या करना है, ये वाली स्क्रीन जो आएगी हमारे पास बिंग ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें अपनी जो भी डिजायर्ड इमेज है या जिस भी तरीके की हमें पिक्चर चाहिए वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसको इंसर्ट पे प्रेस कर देंगे। सेलेक्ट द इमेजेस यू वांट टू ऐड एंड क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। तो हमारी वो जो ऑनलाइन इमेज है वो भी हमारे डॉक्यूमेंट पे आ जाएगी। नाउ इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट। A smart art graphic is a visual representation of your information and ideas. स्मार्ट आर्ट ग्राफिक क्या है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, हमारी इंफॉर्मेशन की और हमारे आइडियाज की। यू कैन क्रिएट वन बाय चूजिंग अ लेआउट दैट फिट्स योर मैसेज। हम इसको क्रिएट कर सकते हैं कैसे, कि हमारा जो भी मैसेज है उसके लिए हम एक स्पेसिफिक लेआउट को चूज करें। इट अलाउज यू टू क्रिएट कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स एंड डायग्राम्स विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो बेसिकली स्मार्ट आर्ट क्या करता है, ये हमें मदद करता है कि हम कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स, कॉम्प्लिकेटेड डेटा को एक इफेक्टिव और लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट के साथ हम उसको क्रिएट कर सकें। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट डायग्राम्स। हमारे पास बहुत तरीके के स्मार्ट आर्ट डायग्राम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि शो नॉन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दिखानी है जिसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, तो हम उसके लिए क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। टू स्टेप्स इन द प्रोसेस और लाइन टाइमलाइन। अब अगर हमें कोई चीज एक प्रोसेस की तरह दिखानी है या फिर हमें कुछ स्टेप्स की तरह दिखानी है, तो हम उसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, हम उसको एज अ प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं। टू अ कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस। अब अगर हमें कोई चीज कॉन्टिन्यूअस दिखानी है कि ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम उसके लिए साइकिल यूज करेंगे। क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, शो अ डिसीजन ट्री। अब अगर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है या फिर हमें कोई डिसीजन ट्री क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हिरार्की, हमारे पास एक ऑप्शन होता है, शो हाउ पार्ट्स रिलेट टू द होल। अब अगर हमें ये दिखाना है कि कैसे पार्ट्स जो हैं वो पूरे से रिलेटेड है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है मैट्रिक्स। इलिस्ट्रेट कनेक्शंस, तो उसके लिए हमारे पास होता है रिलेशनशिप। तो ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट है जो हम अपने प्रेजेंटेशन में अलग अलग तरीके के कंटेंट के लिए या मैसेज के लिए यूज कर सकते हैं। देयर आर फ्यू ऑल्सो। यूज पिक्चर्स टू कन्वे और एक्सेंट कंटेंट। अगर हमें पिक्चर्स को यूज करना है तो उसके लिए हमारे पास पिक्चर ऑप्शन होता है। शो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स विद लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑन द टॉप और बॉटम। अब अगर हमारे पास ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कुछ इस तरीके का कनेक्शन शो करना है, तो उसके लिए हमारे पास पिरामिड का ऑप्शन अवेलेबल होता है। To insert smart art on a slide, you have to follow given steps. अब कुछ ऑप्शंस को फॉलो करके, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम स्मार्ट आर्ट अचीव कर सकते हैं। स्टेप 1 हमें मिल जाता है, क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट कमांड फ्रॉम इलस्ट्रेशन ग्रुप अंडर इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारे पास इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है जहां से हम स्मार्ट आर्ट को चूज करेंगे। दिस विल ओपन चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स, और ये हमारे लिए क्या ओपन कर देगा, एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स को ये यहाँ पे ओपन कर देगा। सेलेक्ट अ डायग्राम टाइप फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स। हम यहाँ के लेफ्ट पार्ट से कोई भी एक टाइप चूज कर सकते हैं। सेलेक्ट द डिजाइन ऑफ द डायग्राम। अपने डायग्राम का डिजाइन सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन ओके बटन। जब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें हमारी स्क्रीन पे मिल जाएगा। दिस विल इंसर्ट अ स्मार्ट ग्राफिक ऑन अ स्लाइड विद अ टेक्स्ट बॉक्स, और ये एक टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही हमारी स्क्रीन पे आएगा। नाउ यू कैन एंटर योर टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्सेस। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये डायग्राम चूज करा, तो यहाँ पे हर सर्कल के अंदर हमें टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा और यहाँ पे हम अपना डिजायर्ड टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। मूविंग एन ऑब्जेक्ट। To move an object, you have to follow given steps. Select an object which you want to move. सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें मूव करना है। क्लिक ऑन कट कमांड इन द कीबोर्ड ग्रुप अंडर द होम टैब। होम टैब में कट कमांड होती है हमारे पास, क्लिपबोर्ड ग्रुप में हम उसको क्लिक कर देंगे। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू मूव द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन पेस्ट कमांड। फिर हम अपने कर्सर को वहां लेके जाएंगे जहां पे हमें उसको पेस्ट करना है और पेस्ट कमांड पे क्लिक कर देंगे।
द ऑब्जेक्ट विल बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव हो जाता है। बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, कट किया, दूसरी लोकेशन पे लेके गए और पेस्ट कर दिया। Now, rotating objects. PowerPoint 2016 allows us to rotate a shape, text, and picture around its center in the clockwise and anti-clockwise direction. देखो, PowerPoint 2016 हमें क्या अलाउ करता है? ये हमें एक इस तरीके का रोटेट ऑप्शन शो करता है, जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को या पिक्चर को क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, in different directions. To rotate objects, you have to follow given steps. Select the object that you want to rotate. सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें रोटेट करना है। A rotation handle displays at the top of the object, और हमें एक रोटेशन हैंडल यहाँ पे मिल जाएगा। How However, the mouse pointer over the rotation handle, the mouse pointer changes in moving wrong. फिर हम इस पॉइंट को होल्ड करके रोटेट करा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। Applying shadow effects. To apply shadow effects on your text, you have to follow given steps. Select the text on which you want to apply shadow effect. जब हमें टेक्स्ट पे शेडो इफेक्ट को अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन टेक्स्ट इफेक्ट कमांड इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप अंडर फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में जाके हमें क्या करना है? वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में टेक्स्ट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। Then a drop down menu is shown with 6 categories of effect. फिर हमें क्या मिलेगा? 6 कैटेगरीज मिलेंगी अपने इफेक्ट्स की। However, the mouse over the shadow category. फिर हमें shadow category पे क्लिक करना है। Now the mouse on any shadow effect which you want to apply. फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? जो भी शेडो हमें अपने टेक्स्ट में अप्लाई करनी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अटेंड व्यूइंग द प्रीव्यू, यू कैन क्लिक ऑन इफेक्ट, द इफेक्ट विल अप्लाई। हमें क्या करना है? फिर रिव्यूइंग द व्यू में जाके अपने इफेक्ट को चूज कर लेना है और हमारा जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। नाउ सेविंग अ प्रेजेंटेशन। हमने जो भी प्रेजेंटेशन बनाई है उसको हम सेव कैसे करेंगे? क्लिक ऑन फाइल टैब, द बैकस्टेज व्यू विल अपीयर। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद हमें एक बैकस्टेज व्यू मिलेगा। क्लिक ऑन सेव और सेव एज ऑप्शन। यहाँ पे हम सेव या फिर सेव एज ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। द सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन। हमें क्या मिलेगा? एक सेव एज डायलॉग बॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ गो टू द फोल्डर और लोकेशन इन विच यू वांट टू सेव द फाइल। यहाँ से हम वो चूज करेंगे कि हमें कौन से फोल्डर या फिर कौन सी लोकेशन पे अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना है। क्लिक ऑन फाइल नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम डाल देंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन सेव। तो हमारी जो फाइल है वो उस पर्टिकुलर नेम के साथ पर्टिकुलर डिजायर्ड लोकेशन पे सेव हो जाएगी। क्लोज और एग्जिट पावर पॉइंट। हमने सब कुछ कर लिया, अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर ली, उसमें शैडोज, इफेक्ट्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स सब ऐड कर दिया। अब हमने उसको सेव भी कर दिया, बट अगर हमें उसे क्लोज और एग्जिट करना है तो उसके लिए क्या स्टेप? To close your PowerPoint presentation, go to the File tab and click on the Close option. Again, what we will do, we will click on File tab. हमारे पास बैकस्टेज व्यू आएगा, यहाँ से हमें क्या करना है? क्लोज ऑप्शन को चूज करना है। If you not saved your files, then PowerPoint will ask you to save your file. देखो, अगर यहाँ पे हमने अपनी फाइल को ऑलरेडी सेव नहीं किया है तो क्लोज करने से पहले वो हमसे पूछेगा that you want to save or not. Then if you want to save, हम सेव कर देंगे। If don't, then you will press on don't save button. The PowerPoint presentation window will close. हमारी PowerPoint presentation window क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। और you may also click on this button to exit the program. या फिर हमारे पास जो ऊपर टॉप राइट में हमें ये मिल जाता है क्रॉस वाला ऑप्शन, हम इस पे क्लिक करके अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हैं। So students, this was your whole chapter about the PowerPoint 2016. I hope all the topics are clear to you. Do revise the chapter and practice the exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.